کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران الطاری حفظہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے لبیک آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پر نگران شورا ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے سیگمنٹس یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، موضوع کی ابتدائی گفتگو کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے، اور بہت سارے کاموں میں انسان کے لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ کبھی رکاوٹیں کاموں میں ڈالی جاتی ہیں، اور کبھی انسان کا اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا انداز، اپنا کام کرنے کا طریقہ یہ انسان کے کاموں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہی ہے رکاوٹ۔ اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے، ہماری کامیابیوں میں کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیا ہم خود اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یا کوئی اور دوسرے لوگ ہماری راہوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات انشاءاللہ ہم نگران شورا سے اس پر بھی مدنی پھول لیں گے کہ آخر وہ لوگ جو خواہی نہ خواہی خواہ مخواہ دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سیدی ابتدائی سوال، پہلا سوال یہی ہے کہ آخر کیوں لوگ دوسروں کے درست اور جائز کاموں میں بھی رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی ادارے میں نوکری کرنے کے لیے آیا، میں اس ادارے میں پہلے سے کام کرتا ہوں، مجھے پتا چلا کہ یار یہ یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے، اس کو نوکری کی حاجت ہے، اور انٹرویو دے کر گیا ہے۔ اب میں فری میں خواہ مخواہ، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، میں اس کمپنی کے مالک کو یا اس کے مینیجر کو کوئی ایسی بات بتاؤں، یار یہ تو بندہ خیانت کرتا ہے، یہ دغا باز آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، کام چور ہے، اس کو رکھو نہیں، اور اس کی نوکری کو، لگتی ہوئی جاب کو اس میں رکاوٹ ڈال دینا، اس بندے کی وہاں سے چھٹی کروا دینا، یہ انداز انسان کا کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا نقصان ہے؟ اسلام و روح اسلام کو دیکھیں تو کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے؟ اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے جی، وہ آپ کی بات سے جو مجھے یاد آئی، جی، اس میں 2 مثالیں میں شریعت کی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال، جب کسی کے یہاں رشتہ ہو تو اس رشتے پر رشتہ مت ڈالو۔ واہ، سبحان اللہ، جی بالکل۔ دوسری جو ایک مثال یاد آ رہی ہے، جب کوئی سودا ہو رہا تو سودے پہ سودا مت ڈالو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 فقہی مسائل ہیں، فقہی جزیے ہیں، اور اس میں شریعت کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ بندہ کسی کا سودا خراب کرنے کے لیے سودا نہ ڈالے، بلکہ سودے پہ سودا ہی نہ ڈالے، سودا ہونے دے، جب ڈیل نہ ہو فائنل تو پھر بھلے وہ اپنا ریٹ بولے، یا کسی کا رشتہ ہو تو پھر رشتے پہ رشتہ نہ ڈالے، تاکہ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک انسان کی اپنی عزت ہے، اس کے حقوق ہیں، اور ایک اخلاق ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کا کہیں روزگار لگ رہا ہے جی، تو بندہ یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ پر میرا روزگار لگ رہا ہوتا تو، اور میں یہ اس طرح کی رکاوٹیں میرے لیے کوئی پیدا کرتا تو مجھے کیا لگتا۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ اس نے رکاوٹ ڈالی کیوں؟ جی، کیا واقعی وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے؟ جی، پہلی بات، کیونکہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہو، صحیح، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا اس شخص کے لیے تجربہ ہو صحیح، جس کا اس کے سیٹ کو پتہ نہ ہو، یا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے یا کام کرنے جا رہا اس کو پتہ نہ ہو، اور اس شخص کو پتہ ہو کہ یہ فراڈیا ہے، یا اس میں اس طرح کی بعض برائیاں ہیں جسے کمپنی کو یا اس فرد کو
یہ اس کے خاندان کو، اس کے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ بات بھی سنی ہوئی نہ ہو، اس کے پاس اس کی کنفرمیشن ہو کہ یہ بات ہے. تو اگر اس وجہ سے وہ کسی کو منع کرتا ہے یا رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ جناب اس وجہ سے آپ اس کو نہ لیں، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں کر رہا. صحیح. اس کو اللہ نے چاہا تو اس کام کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر مراد اس کی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، جی، بلکہ کسی کو نقصان سے بچانا ہے. صحیح. اب رہی گئی بات کہ کوئی وجہ نہیں ہے، وہ بھی صحیح آدمی تھا یا اس آدمی کے بارے میں جانتا ہے کوئی نہیں ہے، اب وہ رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ جی. اب یا تو کوئی حسد ہے، یہ دیکھا جائے گا، یا کوئی ایسا ذاتی مفاد ہے کہ یار میں اپنے بیٹی کی جاب چاہتا تھا یا اپنے بھائی کی جاب چاہتا تھا یا اپنے کسی دوست کی جاب چاہتا تھا، یہ کہاں اوپر سے آ گیا، میں تو جا رہا تھا. اگر اس طرح کی کوئی چیزیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. پھر اگر کسی کے کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا تو یہ انتہائی غلط، مذموم، اور ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر یہ گناہ اور حرام کی صورت بھی اختیار کر جائے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اپنے بھی تو حضور اپنی اولاد کے، جیسے آپ نے کہا، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ یہاں پر نوکری پہ لگ جائے، اس میں کیا برائی ہے، کیا غلط بات ہے اس میں؟ اگر میرا بیٹا اس کوالٹی پر پورا اترتا ہے، اس معیار پر پورا اترتا ہے، جو تعلیم، جو کوالٹی، جو ایبلٹی، جو انسان کی صلاحیت اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے درکار ہے، وہ میرے بچے میں ہے، تو میرا بچہ وہاں لگ جائے. میں نے کچھ اور عرض کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں جیسے کو وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر میرا بیٹا جاب پہ لگے، اب کوئی اوپر سے آ گیا جی، تو وہ نہ جاب پر لگے کہ میرے بیٹے کی نوکری ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو غلط ہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر میرا بیٹا یہاں پر لگ جائے تو کیا حرج ہے، کیا خرابی ہے، کیا غلط؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے کو جو کام خراب کر رہا ہے دوسرے کا، میں حضور میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایک شخص آیا ہے، مہروز بھائی آئے آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مہروز بھائی کی جگہ پر میرا بیٹا یہ نوکری کرتا. اب مہروز بھائی کو میں نے رکاوٹ پیدا کروں گا تو میں آپ کا ذہن خراب کروں گا، تو مہروز بھائی کو منع کرو گے نا. تو بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے بھی بندہ کسی کے کام کو خراب کرنے پر تل جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی کلیریفیکیشن ہوگی جس بات کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ہی ہماری راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یا ہم خود بھی بعض اوقات اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ہے حضور مسائل کریٹ ہونا، اور ایک ہے مسائل کا جنریٹ ہونا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات نہ میں اپنے لیے رکاوٹ بن رہا ہوتا، نہ کوئی اور بن رہا ہوتا ہے. میرے کام کا رکنا مشیت الہی پر مبنی ہوتا ہے، اللہ، اور وہاں پر مجھے اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات مشیت الہی ہوتی ہے، اور مطلب یہ کہہ سکتے ہیں مشیت الہی ہوتی ہے کہ وہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور کوئی نہ کوئی اس چیز میں اللہ کی کرم سے ہی رکاوٹ آ جاتی ہے. آدمی گھر سے جا رہا ہوتا ہے اور سیڑھی سے اچانک گر جاتا ہے اور بولتا ہے یار یہ عجیب ہو گئی، اس کا منہ دیکھا تھا، اس کا منہ دیکھا تھا، یہ تو بدگمان، یہ تو بدشگونی ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن کیا پتا کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کر اس کو موت آنی تھی، اور یہ ہلکی سی پاؤں کی موت سے اس کو بچا لیا گیا ہے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ خود اپنے کام میں کوئی رکاوٹ ہوتا ہے، نہ کوئی اور اس کے کام میں رکاوٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کا اس کام سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی پر موقوف ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ اس کام سے رکائے، ورنہ یہ تو بہت تباہی کی طرف چلا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پہلو سامنے، اگر یہ پہلو سامنے ہونا تو انسان بہت سارے وسوسوں سے، بہت سارے الجھنوں سے سلمان بھائی بچا رہتا. ہمارے نارمل ہوتا یہ کہ ہمارے جب کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں، یعنی کہیں رشتے کی بات چلی نہیں ہوئی، ہم نے کہا فلانا رکاوٹ ڈال دی، فلانا یہ کر دیا. یہ ضروری نہیں ہوتا رکاوٹ ہو گئی. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے حق میں وہ رشتہ بہتر نہ ہو، یا اس بیٹی کا اس گھر میں جانا بہتر نہ ہو، اس کا آپ کا داماد بننا بہتر نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو علم ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ ارشاد خداوندی جو ہے نا، یہ بہت بڑی دھارس دیتا ہے. ماشاء اچھا، ایک عمومی نوعیت کے حوالے سے اگر پوچھیں تو زندگی کسی کی بھی ہو، امیر کی ہو، غریب کی ہو، بادشاہ کی ہو، رعایا کی ہو، رکاوٹیں آتی ہیں. اس اعتبار سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ان کے اعصاب جو ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے اس حوالے سے بڑا کیا کہنا چاہیے
सामने आके जो है वो रुकावटों को फेस करते हैं और उसको अबूर भी कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे माशरे का भी और शायद दीगर माशरों का भी वो होता है कि जब रुकावटें आती हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, दिल हार जाते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रुकावटें तो हैं, जिंदगी में है हर किसी की, तो फेस कैसे करें उसे, क्या करें? आप हर चीज को रुकावट क्यों कह रहे हैं? आप कुछ और नाम दे दें। मैं इसको पार्ट ऑफ वर्क नाम देता हूँ। बाद औक़ात एक चीज काम का हिस्सा होती है, वो रुकावट नहीं होती, और उसको रुकावट नहीं, क्योंकि अगर आप हर चीज को रुकावट बना लेंगे तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। एक बात ये भी है ना, हमारा मौजू रुकावट है तो इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये आपने मौजू के मुताबिक इरशाद फरमाया, तो मैं आपको इसकी ही एक और जहत की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम तो सिलसिला कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए एक गाइडलाइन बने। बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर काम को रुकावट ना समझा जाए। ठीक। बाद औक़ात आप एक वो सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर का टाइम ले रहा होता है, आप बोल रहे थे रुकावट नहीं है, पार्ट ऑफ वर्क है, इसका एक सिस्टम है, पूरा जनरेट होगा तब जाकर ये पूरा होगा। इसी तरह आप इमारत बना रहे होते हैं, इसमें कोई चीज आ जाती है तो इसको पार्ट ऑफ वर्क कहा जाता है। आप घर तोड़ते हैं, कितने लोग हैं जो अपने घरों को रिनोवेट करवाते हैं, जब दीवार गिराते हैं तो अंदर से वो तार निकाल आता है, अंदर से पाइप निकाल आता है, अंदर से पानी की निकल आती है। अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो तकरीबन काम करने वालों के साथ ये चीजें हो रही होती हैं। कभी पैसा आते आते थोड़ी सी फरावानी रुक जाती है तो भी काम थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, तो हर एक को रुकावट का नाम देकर आप अपनी हिम्मत को तोड़ें। एक खूबसूरत सा जुमला मैंने आपको दिया है, देयर इज पार्ट ऑफ वर्क। इसको अगर आप पार्ट ऑफ वर्क का नाम दे देंगे तो काम का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। इस बात आपने टीथिंग प्रॉब्लम नाम सुना है? मेरे मुंह से सुना होगा जी। ये बातों का टीथिंग कुछ आपके मुंह से सुना। अच्छा, जज़ाकल्लाह, अच्छा ही सुना हो तो अच्छी बात है, बुरा सुना तो माफ कर दीजिएगा। टीथिंग प्रॉब्लम यही होते हैं कि जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो इसके दांत निकलते हैं। जब दांत निकलते हैं ना तो दांत के साथ साथ उसको मोशन भी लग जाते हैं, उसको वोमिटिंग भी हो रही है, तो उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और मतलब कि गजब का रो रहा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है, दांत निकल रहा है। तो बास काम होते हैं जिन काम के साथ प्रॉब्लम्स और इश्यूज उस काम का हिस्सा होते हैं। जब आप कोई नई मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं तो नई मशीन चलते चलती है, कई दफा नई मशीन प्रॉब्लम कर रही होती है। ठीक है, तो वो नई मशीन का उसके फंक्शन में आना, आपका उसका फंक्शन को समझना, उसको स्मूथली चलना, ये मतलब कि पार्ट ऑफ वर्क होता है। हर कोई अगर अपने पार्ट ऑफ वर्क को, काम के हिस्से को अगर वो मतलब कि सिर्फ रुकावट ही का नाम दे देगा, फर्क कैसे करेगा? ये आपका पैशन होना चाहिए, ये आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी बुर्दबारी होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि यार इसको काम का हिस्सा बनाए ना। मतलब आप जी रहे हैं अकबर भाई, आप जी रहे हैं, क्या आप जिएंगे तो आप ये नहीं सोचते कि मैं बीमार भी होऊंगा। बीमार होना आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, नहीं बनाया? कैसे फर्क किया आपने, यार बीमारी जिंदगी का हिस्सा है कि रुकावट है? किसी ने डाल, देखे ना, ये इन चीजों को ही अगर आप लेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा था लोग हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं, मैं इन्हीं के जवाब की तरह चल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो लोग हिम्मत कब तोड़ते हैं, ये हर चीज को रुकावट समझते हैं। फिर बाबाओं के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बोलते जादू हो गया तो फना हो गया, तो इसने रुकावट कर दी, तो इसने वो करवा दिया, तो बंदिश करवा दी। तो फिर इन चीजों के चक्कर में पड़कर बहुत सारे कामों से रुक जाते हैं, बहुत सारी हिम्मतों को बेचारे हार जाते हैं और कई वसवसों का शिकार हो जाते हैं और इससे अपना भी नुकसान करते हैं, अपने कारोबार का नुकसान करते हैं और अपने घर बार का नुकसान करते हैं। शादी होती है, शादी के बाद घर नहीं चल रहा होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। इट नॉट, ये यहाँ पार्ट ऑफ वर्क नहीं कहेंगे इसको पार्ट ऑफ लाइफ कहेंगे कि जब जिंदगी के जब दो अजनबी लोग एक होते हैं तो फिर बाद औक़ात इनकी अंडरस्टैंडिंग होने में भी वक्त लगता है। दो पार्टनर एक बनते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होने में वक्त लगता है। आप कारोबार नया खोलते हैं तो उसको चढ़ने में वक्त लगता है। मैं मेमन कम्युनिटी का हूँ, हमारी मेमन कम्युनिटी में एक जुमला कहा जाता है कि जब इंसान कारोबार करता है ना तो उसका पहला साल नुकसान, दूसरा साल बराबर, तीसरा साल नफे का होता है। ये हमारे कारोबार में ये हमें समझाया जाता है। शुरू से कारोबार होता है, लंबा नहीं है, हर एक का यही होता है। लेकिन हमें ये समझा कर क्या हुआ, कम से कम 3 साल तक तो अपने को जमने का मौका दिया ना इन्होंने, कि पहले साल में नुकसान देखकर बंदा कारोबार बंद कर देता है। तो पहले साल में हमेशा नुकसान होना, ये नुकसान नहीं होता, असल में आपकी जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं और ये सारे जो आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप की चीजें जो होती हैं,
जब उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो इतना जल्दी आप नफ़ा थोड़ी कमा लोगे। पहले में तो आप नुकसान ही करते हैं क्योंकि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, दूसरे में बराबर कर रहे होते हैं, फिर सारा ये रिकवर हो गया होता है आपका खर्चा वर्चा, जो तीसरे साल में आप कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जर्नल पॉइंट हो गया, कोई कुरान और हदीस की बात मैं नहीं बयान कर रहा, लोग तजर्बे की सूरत में। तो जब आप हर एक को रुकावट की उससे निकाल देंगे ना, तो आपके जिंदगी के मामलात और आपके डिसीजन और आपके काम करने के मामलात में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी और आप अच्छा सोचेंगे। मेरे अपना ज़हन ये बहुत ये जो आप जैसे फरमा रहे मैं हमारे मदनी चैनल पे ऐसे भी अफराद होंगे जो प्रोफेशनल इदारों से वाबस्ता हैं या हमारे तंजीमी एक स्ट्रक्चर में भी जो लोग हैं। अब मैं खुद ज़ाती तौर पर ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो एक प्रोफेशनल इदारे से वाबस्ता हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर उनको ये भी समझता हूँ कि वो सही है, वो जिस जगह पर ये कह रहे हैं, अब लेकिन वो अपने ऊपर वाले से किसी न किसी वजह से जो है वो अपनी चीज़ उस आगे तक डिलीवर नहीं कर पा रहे या उनको समझा नहीं पा रहे, और ऊपर वाला शख्स जो है वो नीचे वाले के लिए जो है ना वो बाई से रुकावट बना हुआ है। अब ऐसी सूरत में वो अंदर से गुड़ गुड़ जो है वो अपना एक वक्त तक मतलब वो गुजारा करता है, चाहे वो इदारे में हो या किसी जगह पर। फिर एक वक्त आता है कि वो अब जो है वो मतलब कहते हैं कि बस से बाहर हो जाती है जो है वो। आपके कहने से आप जो मुझे समझा रहे ना, इससे वो जो अंडर सुपरविजन काम कर रहा है ना वो टूटेगा। वो टूट इसलिए रहा है कि उसने इसको काम कर वो सके मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाना चाहिए। वो अगर ये भले वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, बॉस कौन है? बॉस कौन है? अथॉरिटी कौन है? उसको ये लगता है कि ये यानी ये इस जगह पर भी ये सही नहीं है। हाँ, तो ये इसके समझने से थोड़ी हट जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं होता। देखें, अगर आप किताब कुरान और हदीस की बातें पढ़ेंगे, इस्लाम और शरीयत और दीन की बातें पढ़ेंगे ना, इन तमाम तर पहलू में सुबह ही बैठकर रियाज़ुस्सालिहीन, फैज़ान रियाज़ुस्सालिहीन का मुताला कर रहा था और उसके अंदर में एक मजमून पढ़ रहा था कि जिसमें अगर कोई जालिम इस तरह का जाबिर हाकिम हो तो अपने रब से दुआ करो, अपने रब से दुआ करो, अपने अमाल की इस्लाह करो। फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े, इन तमाम तर चीज़ों को शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब ये हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप इस तरह अपने पर ले लेके यार ठीक है, नहीं माना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपको याद होगा अकबर भाई, जब मैं आप लोगों के साथ सिस्टम पर बैठकर वीसीडियाँ बनवाता था, ठीक है, आपको याद होगा, और मेरा ख्याल है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक कंटिन्यू मैं आप लोगों के साथ को घंटों बैठता था और बैठकर मैं वीडियोस और ये फुटेजेस और सारे काम करा था, यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो, ये लाओ, वो लाओ। अच्छा, अब आपको इस बात का आपको याद होगा, मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि एक वक्त आता था कि सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता था, याद है? मैं एक जुमला कहता था, वो जुमला आप दोहरा दें अगर याद आता हो। मैं जुमला कहता था, यार अब लगता है काम पूरा होने वाला है। यानी मैंने उस रुकावट को अपने तौर पर एक पॉजिटिव में ले लिया था। ये असलम सिंगार को भी पता है और दूसरों को पता है। यानी मैं देख लेता था कि यार इसका मतलब ये असलम हम साथ काम करते थे, एक और हम काम, यार लगता है अब काम पूरा हो रहा है क्योंकि अब ये रुकावट, अब ये नहीं अटकना शुरू हो गया, तो ये एंड, इसका मतलब ये क्लोजिंग प्रोसीजर पर है। वरना 4-4, 5-5 दिन के बाद जब ये सिस्टम रुकना और हैंग करना और जिसको बोले कि रुकावट डालना शुरू हो जाए तो आदमी तो मतलब कोई यूं बात होगा गुस्से में, अगर अपनी उसकी भी इजाजत नहीं है कि अपनी मशीन को अपने हाथों से तोड़ दे, तो फिर गुस्सा आ जाए ना उसको। मुझे उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा नहीं आता था, मैंने इसको पार्ट ऑफ वर्क बना लिया था कि ये काम का हिस्सा है। अब इसका मतलब ये मतलब मंजिल आने वाली है, ठीक है ना। बाज़ों का मंजिल आने वाली हो ना तो भी चीजें उमूमन आ रही होती हैं, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं चीजें। तो अल्लाह करम करे और हम पॉजिटिव देखें, इन तमाम तर चीजों के लिए आप पॉजिटिव हो जाए। नहीं, आप पॉजिटिव चल रहे हैं असल में। अरे मैं कहाँ पॉजिटिव चल रहा, मैं तो पॉजिटिव चलने का कह रहा हूँ। पॉजिटिव चलने के लिए कहना ही पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। नेगेटिव जा रहे हैं। जो रियल लाइफ है ना, अब उसमें आप आइडियल लाइफ की बात कर रहे हैं। जंगल में रहता हूँ, आप आइडियल लाइफ की बात कर रहे हैं। बेचारे को पूछें, उसको तो सांस लेने में रुकावट हो रही है। आप इस उसको बेचारे को दमा होगा ना यार, बेचारे को सांस लेने तो बेचारे को दमा हो गया होगा। वो कह रहे भाई मुझे सांस लेने में रुकावट क्यों हो रही है, बोला दमा है। सब मैं आपके मदनी फूल नो डाउट एक तिर्याक की सी हैसियत रखते हैं, और आपने जो एक मदनी फूल दिया ना जी कि इट्स पार्ट ऑफ वर्क और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ,
यानी जो पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ सिस्टम, ये सब को आप रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक मिलता है जी, इसको हिस्सा बना लें, आपकी कॉफ्ट खत्म हो जाएगी। वरना रोज रोते रहेंगे, अब यार जब देखो रश है, जब नहीं रोज देखो रश है, मगर पार्ट अभी ट्रैफिक, अब लाखों लाख रोड पर है, क्या करोगे? पोपो पोपो बजाते रहोगे तो क्या आगे का वो वेगन वाला हट जाएगा? कभी भी नहीं हटेगा, तंग हो जाओगे आप, आपका ज़हन बन जाएगा यार 1.5-2 घंटा लगेगा। आप इजीली देखो, अपनी जिंदगी को आसान बनाए ना। इस वक्त आपको देखो, आप तो बैठे इसलिए ना कि आप काउंटर, मैं आपको, आप बैठे इसलिए कि आप काउंटर करें ताकि मदनी चैनल के नाजरीन तक और ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब पहुंचे। आपकी एक पोस्ट है, जॉब है, इसमें वजाहत करने में क्या हर्ज है। लेकिन इस वक्त ये देखिए कि हमारी गुफ्तगू से हो सकता है कि इस वक्त मदनी चैनल पर बैठे कई जिंदगी से बेजार और कोफ्त का शिकार लोग शायद राहत पा रहे होंगे। हाँ यार, चलो यार, जिंदगी का ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, आप देखो बनाना पड़ेगा, वरना आप अच्छे पहलू की तरफ जाएं, खुद को अच्छे की तरफ लाएं, अच्छे पहलू की तरफ लाएं। कोई चीज हो जाए, हमारे बड़े बूढ़ों ने यही हमको सिखाया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ मदनी चैनल के नादरीन को, मेरा ख्याल है मेरी ये मिसाल बहुत समझ में आ जाएगी कि जब कोई किसी जगह से चोट खाकर घर पर आते थे, कोई पर्स चोरी हो गया घर पर आ गए, कोई और मतलब नुकसान हो गया घर पर आ गए, तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे? अल्लाह ने छोटी में टाल दिया। ये आपके जान बच गई तो जो है ना, नहीं हम हमारे तो कहते हैं अक्सर वही होता है, जान बची लाखों पाए जिसे कहते हैं ना, वो नहीं, हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है। तुसी भी कहो ना, वो जो आप अपने स्टाइल में जो है वो, नहीं ये आपके यहाँ होता होगा, लेकिन मारते जो है वो अपना, आपके नहीं होता होगा, लेकिन हम जिसके यहाँ होता तो ठीक है, तो हमारे ऐसा होता तो हमारी सोच बनी हुई है ना। इसी डर और खौफ की वजह से बच्चा बाजों का जो है वो कोई अटेम्प्ट कर जाता है या कोई ऐसी चीज। हमारे यहाँ देखिए ये कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, मतलब हम जैसे मेमन है ना, अल्लाह टुक्की में टाड़ी हुई जी, हमारे मेमने में अल्लाह टुक्की में टाड़ी हुई, यानी कि छोटी में अल्लाह ताला ने इसको टाल दिया, ये होता। अब इसमें मतलब ये एक क्या, अब पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चीज को जितना आप लेंगे ना उतना आपके लिए फायदा है। अगर एक शख्स मोबाइल चोरी करके ले गया, चलो अच्छा, बुजुर्गों की सीरत से साबित है, एक शख्स चोरी करके ले गया, बुजुर्ग ने फरमाया कि दुनिया का चोर आया, दुनिया का माल लेकर चला गया, ईमान का चोर आता, ईमान लेकर चला जाता तो क्या करता। अच्छा, एक और बुजुर्ग के बारे में आता है कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तो ये देखो कि अगर इससे बरी आती तो ठीक, ये जाने वाली आई है, ना जाने वाली आती तो ठीक, इससे ज्यादा आती तो, इन तमाम तर चीजों में ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। सुभान अल्लाह। जब आप पॉजिटिव चीजें लोगे ना, तो रुकावटों वाली जो सोच जो आजकल हमारे सोसाइटी में बनी हुई है, मैं उसके समझो कि उसका रद्द कर रहा हूँ, ताकि हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपनी सोच को आसान बनाएं, लोगों के बारे में अच्छा गुमान करें। वरना रुकावट क्या रुकावट कर, यहाँ काली बिल्ली भी रुकावट पैदा कर रही है भाई, काला धागा रुकावट पैदा कर रहा है, यहाँ किसी को पीछे से बुला लो, बोलो को बुलाया क्यों जा रहा था तो वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो कभी बीवी का मुंह देखो तो रुकावट आ रही है, कभी अपना ही मुंह देखो तो ऐसा लगता था कि फिड्डे मुंह हो गया है। तो ये सारी चीजें मतलब कि ये चीजें क्यों हम लोग तस्वर कर रहे हैं, ये बदशुगुनियां हैं, बहुत सारी बदगुमानियां हैं। ये रुकावट का जो आपने टॉपिक लिया है ना, इस रुकावट के पीछे बहुत सारी बदगुमानियां हैं। ये मैं एक पहलू जिंदगी का बयान कर रहा हूं, इसके अलावा और पहलू हैं जिसमें रुकावट का होना हकीकत पर मबनी है। इसका मैं इनकार नहीं करता कि लोग रुकावटें पैदा करते हैं, और खुद आप भी अपनी जात में किसी काम की रुकावट बने हुए होते हैं। ये एक अलग है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सही, आप वक्त पर डिसीजन नहीं ले रहे होते, आपकी प्लेसमेंट गलत होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत होती है, आपकी अप्रोच गलत होती है, आपकी मुशावरत गलत होती है, जिसकी वजह से आप खुद अपने काम में अपनी जात में खुद ही रुकावट बने रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज आपके इस उन्वान के तहत मदनी चैनल के नाजरीन को एक पॉजिटिव चीज दें कि हर चीज को रुकावट ना समझें। बहुत सारी चीजें रुकावट नहीं होती, पार्ट ऑफ लाइफ होती है। इसको आपकी मैं एक बात करूं जी, मैं महजूज बहुत हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस गुफ्तगू से, और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं और मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ये आपकी गुज़िश्ता जो 10 मिनट है, ये गुफ्तगू एक तरफ, और जो आम फलसफियाना पॉजिटिव थिंकिंग पे बंदा 2 घंटे 2.5 घंटे तकरीर सुने, वो एक तरफ, बल्कि वो शायद फिर भी वो असर नहीं करेगी जो आपकी मदनी फूल माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में। मैं थाईलैंड में था जी, तो मुझसे एक
बिल्कुल एक मॉडर्न लड़का था जो शायद सुनकर आ गया होगा कि भाई इमरान यहाँ आ रहा है, बिल्कुल मॉडर्न लड़का था, मैं नहीं जानता था। तो कुछ नेकी की दावत का सिलसिला हुआ तो उसने कहा आपसे एक सवाल करना है, तो उसने तकदीर का सवाल किया। अब तकदीर का आपको पता है सवाल कि मतलब जो तकदीर में है वो करना ही करना है, तो फिर क्या। मैंने इससे 2 या 3 मिनट सिर्फ बयान किया कि जो हमारी जो हमने करना है ना जी, वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से पहचाना और वो लिख दिया कि इसने ये करना है। कहा ये क्या? मैंने कहा एक शख्स पानी की बोतल बनाता है, एक चीज एक प्रोडक्ट लिखता है, बनाने वाला इस पर लिख देता है कि इस पर एक्सपायरी डेट ये है कि ये इस तारीख को ये चीज एक्सपायर हो जाएगी। इसके लिखने से ये एक्सपायर नहीं हो रही है, चूंकि इसने एक्सपायर होना है और उसने अपने तजर्बे से जाना कि ये इतने अरसे में एक्सपायर हो जाएगी तो उसने लिख दिया। ठीक है, मैंने इस तरह की उसको एक मिसाल दी। मैंने कहा आप बोला बिल मुझे भी मेरे साथ एक साथी थे, उन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों किसी जगह पर तकदीर पर तकरीबन 1.5 से 2 या 3 घंटे का कोई बयान सुना था। हम तो कंफ्यूज हो गए थे। 3 मिनट आपकी ने लगाए कि तकदीर का फलसफा समझ में आ गया। और ये मेरे इस पर उलझने का भी मना है, इसमें पढ़ने का भी मना है, मगर आपने सवाल किया है तो ये है तकदीर का तस्वुर कि बंदा जो कुछ करेगा अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से जाना और उससे अल्लाह ताला ने लिख दिया। बंदा उस लिखे हुए का पाबंद नहीं है, बल्कि जो बंदा कर रहा है वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से जाना और उसे लिख दिया। ये कैसे हासिल होता है मलका के 2-3 घंटे की बात को 2-3 मिनट में? अमीर सुन्नत का फैजान है जी, सही कह रहे हैं। अमीर सुन्नत, असल में अमीर सुन्नत ने अवाम को अवामी अंदाज में समझाने के बारे में हमें मदनी फूल दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इससे थोड़ा बहुत तो आप जहन बनाए तो बनता हो तो हो जाता है। पॉजिटिव चीज मैंने अमीर सुन्नत से पॉजिटिव चीज सीखी है। हमने तंजीमी तौर पर तो इतने इश्यूज आते हैं, हम बिल्कुल वो पापा क्या करते हैं जब कोई रुकावट आती है? हम तो बस ऐसी जगह पर पहुंच के सोच रहे होते हैं अब अंदर की बातें। अल्लाह अकबर। आप इस सतह पर पहुंच गए, मतलब निगरान शुरा बन गए, आपको ज़ेली निगरान से ऊपर तक आते हुए रुकावटें पेश आई जो बताने जैसी हो, अगर बताना हो कभी इस तरह का कोई सिलसिला रहा हो कि अब भी कभी जो है? आपको पता है जवाब मैं क्या दूंगा? रुकावट उसको महसूस होगी जिसने यहाँ आने की कोशिश की। मुझे एक सफर तय करना था तो मुझे रुकावट होती ना, मैं खुद कोशिश से तो आया नहीं हूँ। आया हूँ, बैठा हूँ इधर, मुझे तो पता भी नहीं था। आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं निगरान शुरा बनूं? दाऊद आप समझ सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट मेरे पास, समझ सकते हैं कि ऐसा कभी सोचा होगा? जब शूरा बनी थी तब भी नहीं पता था कि हम शूरा में आएंगे। अच्छा, आप जब रुकने शुरा बने तो उस वक्त आपको पता था कि आपको रुकने शुरा बनाया जा रहा है? मैं रुकने शुरा बन सकता हूँ, मुझे रुकने शुरा बनना होगा या मुझे रुकने शुरा तो लिया जाएगा, मैं अपने अंदर ये चीज पता ही नहीं था कि मेरे ये सोच, मतलब मेरे अंदर ये खप तो था ही नहीं कि मतलब मैं भी इस मनसब पर आ सकता हूँ या मैं ये जिम्मेदारी पर आ सकता हूँ। जिसमें हरज क्या, अगर कोई यूं सोचता है कि मेरे पास जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे इतना अरसा हो गया, इतना तजर्बा हो गया, इतना इल्म है, इतनी कुर्बानियां, इतना सब कुछ मैंने किया है, तो मुझे भी दो इतना सब कुछ हो और कोई सोचे तो चलो फिर भी हम उसके बारे में सोचे। जिसने क्या ही कुछ नहीं है वो खाली खाली का सोचे। ऐसा वैसे ही लोग आइडियल तो बन जाते हैं ना, किसी पोस्ट पर हो तो एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है वो कि बहुत अच्छा है, ये इसके जैसा बनना है। आज भी कई मदनी मुन्नों की सोच भी ये है कि मैंने बड़े होकर निगरान शुरा बनना है, तो आप उनको क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? निगरान शुरा बनने के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है? कितना बड़ा? उनको बड़ों का बनना नहीं, उम्र के उम्र के साथ। अल्लाह, इसकी फजीलत क्या? बंदा तमन्ना करे नेक बनने की, बंदा तमन्ना करे तहज्जुद गुजार बनने की, सुभान अल्लाह, बंदा तमन्ना करे कोई मतलब कि ऐसा अमल करके अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम पाने की, कोई रिजा वाले काम करने की। हकीकत तो ये है कि मनसब में क्या रखा है, ये मुझे बताइए। ये सब आइडियल तो किसी बंदा एक सेट करता है ना कि मैंने एक चीज को अचीव करना है। हम तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना। आप किसी काम को करने के लिए जब जुस्तजू करते हैं ना और वो काम वो चीज नहीं मिलती ना तो बड़ा मसाइल पैदा होते हैं, और फिर मिल जाए ना फिर उसको संभालने के लिए फिर बड़े आदमी, मिसाल का अगर आदमी किसी मनसब के लिए बहुत मेहनत करता है ना तो उस मनसब को संभालने के लिए बादों का जुल्म भी करता है। बड़ी मेहनत से उसने कमाया होता है ना वो मनसब को।
आप देखिए कि जो शख्स किसी मनसब का तालिब हो तो उससे वो मनसब ना दिया जाए, क्योंकि उसको उसके मनसब के सुपुर्द कर दिया जाता है, और जो बगैर तलब के दिया जाए अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमाता है। ये रिवायतें मौजूद है ना। तो कभी इन चीजों की तमन्ना की नहीं, बल्कि रिवायतें वाज़ेह हैं कि जो मनसब मांगते हैं उन्हें मनसब दिया नहीं जाता, मनसब मांगने वालों को मनसब नहीं दिया जाता। अच्छा, बाद वक़्त लोग यहाँ पर वजात करता चलो, पहले इल्म तकवा भी होगा शायद देखने सुनने वाला, वो शायद ये कहेगा कि जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो मनसब मांगा था, ये मुझे दे दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनका कहना कुछ और है, उनका मकाम कुछ और है। वो मतलब कि अल्लाह के नबी हैं, वो मासूम हैं, हम नफ्स के मारे हुए लोग हैं। मुस्तस्नियात अपनी जगह। हाँ, अगरचे वहां से इस्तदलाल कई चीजों पर उलमा करते हैं, वो उलमा का हिस्सा है कि उलमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस कौल से किस मैटर में इस्तदलाल करते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी ये इस्तदलाल करता फिरे तो इस पर बस को गौर कर लेना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं हजरत उस्मान गनी के पास भी तो पैसा था, अब पैसा मेरे पास है, मैं अपनी दौलतमंद होने को साबित करने के लिए उस्मान गनी की मिसाल दूं, तो बात यह है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो माल था वो ऐसा माल था, उसका जर्रा भी अगर मिल जाए तो शायद हमारे गुनाह बख्श, बल्कि शायद क्या यकीनन हमारे गुनाह माफ हो जाए। हलाल पाक तैयब शुबे से पाक, तकवे के समुंदर में गोता लगा हुआ माल, बगैर हिर्स के मिला हुआ माल। और हम मतलब के हम तो हिर्स में डूब कर माल कमाते हैं। तो ये चीजें पॉजिटिव चीज रखें अपने अंदर, इंशाल्लाह तबारक व तआला। मैं सोचता हूँ आपको ये अर्ज करना चाहिए, इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने जिंदगी को आसान बनाए, रुकावटों का नाम ले लेकर बेकार परेशान होने क्या बात है। वाह जी वाह। अगर लिखने की इजाजत होती ना तो लब्बैक में आपके बोले जाने वाले जुमलों की भी शरह लिखी जाए। बाज़ों का ताज्जुब में डाल देते हैं कि इतना भारी जुमला आप एक सांस में कहकर आगे निकल जाते तो 2 सांस लेने का टाइम नहीं। अभी जैसे निगरानी शुरा ने फरमाया ना कि मनसब के लिए कोशिश करता है, फिर जब उसे मनसब हासिल हो जाता है वो जुल्म भी करता है। मतलब उसे जुल्म होने के पूरे अंदेशे नहीं, मतलब इसे अगर हम देखें तो वाकई में देखो एक आदमी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जब उसको कोई लूटने आता है ना तो जान तक दे देता है, नहीं पैसा नहीं दूंगा, है ना। यानी एक चीज बड़ी मेहनत से आई हुई होती है ना, तो बाद वक़्त उसमें अच्छा इसमें अलग अलग नौयतें होती हैं। मैं मनसब की बात कर रहा हूँ, मनसब ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपके मुकद्दर में कोई आपसे अपनी रिजा वाला काम लेना है तो वो आपको मनसब ही के जरिए ले, ये भी कब जरूरी है जी। तो फिर एक तंजीमी ज़ाब्ते में अगर मैं पूछूं तो बास तो ऐसे मुखलिसीन होते हैं ना, कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, और फिर आप लोग मदनी मशवरे में कहते हैं कि जिम्मेदारी लो लो लो, वो बेचारे भाग रहे होते हैं, नहीं लेना चाहते। क्या जो मतलब के जब दी जाए ले लेना चाहिए, मदीना मदीना, और वापस ली जाए तो दे देना चाहिए। मदीना मदीना। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, ये तो वाली बात हो गई, अड भी अपनी है पढ़ भी अपनी है। तो मदनी मरकज फिर किसका नाम है जी? यही है ना कि जब खिलाफ शरीयत बात ना की जाए तो मान ली जाए। बिल्कुल ठीक है, हिकमत ना समझ में आए, यहाँ इख्तलाफ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ बात मानना है, बात मानने का नहीं है जी, जहाँ बात शरीयत के खिलाफ होगी। मदीना मदीना। ऐसा ये बात पहले तो हम सुनते थे कि मदनी मरकज की हिकमत मदीना मदीना, लेकिन अब ये तजर्बे से बात साबित शुदा है, यानी मेरे जैसे ना तजर्बाकार बंदे ने भी इसको महसूस किया है कि मदनी मरकज जो डिसीजन लेता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकत वाला भी होता है, वो फ़ायदे वाला भी होता है, हिकमत से भरा भी होता है। हमें समझ में आए या ना आए शरीयत के मुताबिक हो, मानना चाहिए। तजर्बा कुछ कॉल शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अमदील अतारी बडियाना ज़िला ज़ियाकोट से बात कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शुरा तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। निगरान शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कई घरों में ऐसा होगा कि बच्चे तो मदनी माहौल में आना चाहते हैं, बच्चे तो नेक बनना चाहते हैं, लेकिन घर वाले वालिदैन उनके लिए रुकावटें बन रहे हैं। इसका कोई मदनी पूर इस बारे में इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु तआला खैरा। ये रुकावट बाज़ औक़ात होती है, वो वालिदैन की इल्म की कमी होती है। अगर वालिदैन को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मदनी चैनल दिखाया जाए, मदनी माहौल के करीब लाया जाए, घर में शुरू में दर्स शुरू कर दिया जाए, राह हमवार की जाए, तो इंशाअल्लाह वालिदैन भी आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। वालिदैन बाज़ औक़ात गलत फहमी का शिकार होते हैं, मिस गाइड होते हैं, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो दुरुस्त नहीं होती इनके जहनों में बैठी हुई होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे तजर्बात होते हैं
کہ جو غلط ہوتے ہیں مگر ان دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں اور اپنی محبت سے، پیار سے، شفقت سے، احترام سے والدین کے دل میں جگہ بنائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، پھر آپ کے لیے راہیں خود ہی آگے بڑھ کر ہموار کریں گے. ماں باپ ہے نا، ماں باپ بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، مگر وہاں پر ماں باپ جو بھلا چاہنے کی سوچ رکھ رہے نا، وہ لا علمی ہے، کم علمی ہے اور علم دین کی کمی ہے. انشاءاللہ آپ محبت و پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ کام کریں گے، انشاءاللہ راہ کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے وہ ایک شخص مسلمان ہوا جی، اور مسلمان ہوا تو اس کی پوری فیملی غیر مسلم تھی. باپ تھا محتاج، ویل چیئر پہ تھا. جب باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو وہ بڑا مطلب کہ اس پر ناراض ہوا نا، کہ تم ہمارا دن کیوں چھوڑ دیا، اور اس سے لڑائی جھگڑا. اب نہ اس کو ویل چیئر پہ ہاتھ لگانے دے، نہ اس کو کسی قسم کی خدمت کرنے دے. اچھا بیٹا کیا کرتا تھا؟ تو باپ، بیٹا باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی جو بھی اس شرعی تقاضے پورے کر کے اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے جو بھی کرنا ہوتا. اچھا باپ مسلسل دیکھ رہا ہے کہ میری ضعیفی اور میرے بڑھاپے کی وجہ سے میرے دوسرے بیٹے مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتے، لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ یہ جب سے مسلمان ہوا ہے تب سے یہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے. آہستہ 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 اس باپ کے دل میں اپنے اس مسلمان بیٹے کی محبت پیدا ہوئی. بیٹے نے انفرادی کوشش کی اور وہ باپ جو اس کے اس فعل سے نفرت کرتا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہی باپ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے کفار مکہ میں سے کتنوں کو مولڈ کر لیا. اخلاق، نرمی، پیار، محبت، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بدل دیتی ہیں. کال لے لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاریخ آنے وال شیخ سے بات کرو. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کبھی کبھار دنیا کے معاملات میں رکاوٹیں آ جائیں تو اس کو اس انداز سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کے بارے میں بھی آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلے عرض کی، پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اس کو پوزیٹیو لیں کہ یہ نہ ہونا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، دعا کریں، اور کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے استخارے کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے، ہماری توجہ دلائی ہے، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ بھلائی سے محروم نہیں رہتا. تو یوں مطلب کہ یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں. پھر یہ کہ اگر واقعیتاً ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے پریشانی، کوئی حسد پیچھے پڑ گئی ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی سی چیز کروا دی ہے، جادو کا وجود موجود ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جادو کا وجود موجود ہے. نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ انتہائی سوچ ہوتی ہے، ہم ابتدا میں ہی یہیں پھنس جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز لگتی ہے تو روحانی علاج کی طرف چلے جائیں، اوراد و وظائف کی طرف چلے جائیں. 40 روحانی علاج جو ہمارا امیل سنت نے جو رسالہ دی ہے اس میں سے وظیفہ لے لیں، اور بڑے مختصر سے وظیفے اوراد و وظائف ہیں، اس کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، اور بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. بہت مختصر سا ورد ہوتا ہے، پڑھ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے. ویسے آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا محسوس ہو جسے آپ کہہ رہے تھے کہ پارٹ آف ورک یا پارٹ آف لائف ہے، یا رکاوٹ کے لیں ہمارے الفاظ میں آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں کام کے دوران، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مختلف مواقع پر بندہ مختلف انداز اختیار کرتا ہے. مطلب دعا بھی کبھی ہوا ہو کہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ، رکاوٹ آ رہی ہے، آپ نے یوں پینسل ماری ہو ٹیبل کے اوپر، کیا مصیبت پڑ گئی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، کبھی کوئی ایسا ہوا؟ یاد نہیں ہے کوئی ایسا. پینسل میں سے کیوں ماروں گا، ایسے خالی پینسل ماروں گا، ایسے خالی پینسل ماروں گا. پریشانیاں رکاوٹیں زندگی کا حصہ ہیں. ایسا آپ جیسے مضبوط اعصاب والا بندہ، ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، آئے تو پتا چلے. نہیں تو کرتے کیا ہیں وہ تو کچھ تو میں نے عرض کی نا، استغفار کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے، اور مطلب کہ مشورے کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار یہی حل ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ حل نہیں ہے، کہ حل ہوتا ہی یہی ہے، کہ بھائی یہی حل ہے. بعض اوقات آدمی کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے اس کا حل ہی آپریشن ہے.
اب بولے گا یار آپریشن تو حالی آپریشن ہے تو کیا ہو سکتا ہے. تو بعد وقت آپشن نہیں ہوتا مہروز بھائی. بندہ غور کہاں کرے جہاں آپشن ہو. جہاں آپشن نہیں ہے تو وہاں غور کیا کرنا ہوتا ہے. اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار تم نہیں یار کرتے کرتے وز آیا کر رہا. آپشن ہی نہیں ہے. دیر از نو آپشن ان دس ورک. تو صرف ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے آدمی کا آپشن نہیں ہوتا. آپ استخارے کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ استخارے کی طرف جائے. استخارے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو استخارہ کرنے والا ملتا ایسا ہے کہ وہ پھر ایک کے بعد ایک بیماری بتا کر جب تک ساری جیب خالی نہیں کروا لیتا تب تک استخارہ کرنے والے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا آپ کو. استخارہ تو آپ نے خود کرنا ہے. عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وال چاکنگ آپ ملاحظہ فرمائیں استخارہ جگہ یہ پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو جس استخارے کی طرف توجہ دلائی آپ وہ استخارہ کریں. وہ استخارہ آپ نے کرنا ہے. مطلب آپ کا کام ہے ہم نے کرنے ہیں. تو مولوی صاحبان پیر صاحبان یہ اتنے سارے حضرات یہ کیوں ہے؟ یہ کسی مرض کی دوا ہے. بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گے. مطلب کہ یہ تو ہے ہی دوا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نیک بندے. یا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دقت یا پریشانی ہے تو آپ نماز پڑھیں. نماز کے بعد وہ دعا پڑھیں. دعا استخارہ پڑھیں. سو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں رہنمائی فرمائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب اس میں آپ بولو گے فلاں کر کے دے کام آپ کا فلاں کر کے کیوں دے. نہ میری زبان ایسی نہ میری نگاہ ایسی نہ میرا دل ایسا. یہ سلمان بھائی یہ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ, شریعت کے پابند ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لوگ ان سے کراتے ہیں. میں ان سے کرا دوں تو آپ کو کیا تکلیف؟ بھائی جان مجھ سے کوئی نہیں کرواتا. بھائی صاحب ایک یہ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کروانا ہے نہ کروانا اپنی جگہ. اگر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں استخارہ کر دیتا ہوں تو میں نے کہا منع کیا ہوا ہے آپ کو. میں نے کوئی رکاوٹ کی ہے؟ میں تو رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہوں. سب یہ مینٹلٹی بن چکی ہے کہ ورد بھی آپ بڑھیں, وظیفہ بھی آپ پڑھیں, کارڈ بھی آپ کریں اور کام میرا کر دیں. یہ بنا ہوا ہے, ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں. آپ بکرا بھی دے دیں گے, مرغی بھی دے دیں گے, انڈے بھی دے دیں گے, سب دے دیں گے. تو صدقہ دینے سے کام ہوتا بھی تو ہے نا. ماشاءاللہ صدقہ دینے سے بھی رکاوٹیں. مطلب صدقہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. مدینہ صدقہ دے دے. صحیح ہے. اور یہ ساری چیزیں تو ترغیباً موجود ہے نا. جی بالکل ترغیباً موجود ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی ملا باندھتے مذمت تو نہیں کر رہا. ایسی بات. اسلام و دین میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اب بھی عرض کرتا ہوں, دین جس کام کی مذمت نہیں کرتی نا اس میں مذمت نہیں کرنی چاہیے. مدینہ. اسلام و دین جس کام میں ملامت نہیں کرتا, اسلام و دین کی تعلیم جس کام میں مذمت نہیں کرتی, اسلام و دین جس کام کا منع نہیں کرتا, نہ اس کام کی مذمت کرنی چاہیے, نہ اس کام میں ملامت کرنی چاہیے, نہ اس کام کو منع کرنا چاہیے. ہمیں بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے. ہمیں بھی تو سمجھ میں اسلام و دین کی بات سمجھ میں آنے کے لیے کوشش کرتا رہے. ٹھیک ہے جی. مدینہ اپنی ایفرٹ بھی کرے, کوشش بھی کرے, استخارہ بھی کرے, اور بزرگوں سے اولیاء سے مشورہ کرے. جو مشورہ کرتا ہے وہ درستی سے محروم نہیں رہے. مدینہ. بسا اوقات مشورہ دینے والے بھی تو ایسا بہترین مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کل کا ڈوبتا آج ڈوب جائے. آپ نے اسے لیا کیوں؟ ایک سہارا ہی وہ نظر آیا. مثال کے طور پر میرے ایکسس میں حضرت ہے. آپ کو سہارا ایسے ساری برائیاں میرے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ آپ قریب میں حق ہے میرے نہیں تو مطلب کہ سہارا آپ مشورہ تو آپ نے لینا نا. اگلا کو آپ مسلط ہوئے تو مجھ سے مشورہ کرو. ایسے دوستوں سے ہی مشورہ کیا جاتا ہے. تو دوستوں میں بھی تو انتخاب کیا جائے گا نا. پتا تو بات میں چلا نا کہ اس کا مشورہ لینے کے بعد مجھے پھنسنا تھا. نہیں مطلب کہ مشورہ لینے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں مشورہ لے کے سے رہا ہوں. یہ تو کام آپ کا تھا, میرا نہیں تھا. مطلب مشورہ دینے والا الگ ہے. جب مشورہ دینے والا یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ میں مشورہ نہیں دے سکتا. آپ نے پوچھا وہ اس نے دے دینا ہے. مشورہ دینا بھی ایک علم ہے. درست مشورہ دینا واجب ہے. اور مشورہ دینے والے کے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں جو ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ تو میرا کام ہے کہ مجھ پہ پریشانی آئی ہے. اب آپ بیمار ہو تو آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ سمجھ یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر ہی مرض کا علاج. جب یہ سمجھ ہے تو بھی مشورہ دینے والے کو بھی سمجھے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس نے بولا کوئی ہاتھ نہیں آ رہا تو اس سے ہی مشورہ کر لو. تو پھر جو نصیب. اللہ خیر کرے. اللہ اکبر. بڑے پیارے انداز میں نگران شورا نے ڈائمنشنز کو واضح کیا ہے. کالز کا حضور کافی ہمارے پاس ایشو ہے, زیادہ کال لے لیں جی. آج ویسے تو کال پہ جتنا رہے اتنا اچھا ہے جی. انشاءاللہ جی کالز شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول نگران شورا اور دیگر مبلغین بیان کر رہے ہیں, اور ابھی منصب کے حوالے سے نگران شورا کے مدنی پھول سنے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مدنی ذہن دیا ہے انہوں نے منصب کے حوالے سے.
तो एक सवाल आया है ज़हन में कि जब मरहूम निगरान शुरा हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला दुनिया से पर्दा उन्होंने फरमाया, तो उस टाइम हाजी इमरान भाई की सिलेक्शन कैसे हुई निगरान शुरा के तौर पर? क्या इनके अलावा भी कोई उम्मीदवार थे या किसी के बारे में गुफ्तगू हुई थी, या डायरेक्ट बापा ने इन्हीं को निगरान शुरा बना दिया? कुछ इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल मेरे लिए बड़ी आज़माइश है। असल में हुआ ये था, जो एक कि जब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक हुआ तो अमीर सुन्नत की तरफ रुजू किया गया था कि हाजी मुश्ताक अलैह रहमा को भी आपने निगरान शुरा बनाया था, तो अब भी निगरान शुरा का इंतखाब आप ही करें। तो आप ये अमीर सुन्नत ने ये बात मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाई है, जिसको मैं आपके सामने अपने अंदाज से दोहरा रहा हूँ। तो अमीर सुन्नत ने फरमाया था कि मैं निगरान शुरा नहीं बनाऊँगा, मैंने एक निगरान शुरा पहला बना दिया, अब शुरा ही अपना निगरान मुंतखब करेगी, लिहाजा आप जिसे निगरान बनाना चाहें बना दें। तो उस वक्त ये था कि मेरा नाम दिया गया था, तो मतलब जो नाम दिया गया था वो मेरा ही निकला, जो अमीर सुन्नत ने ऐलान किया। तो ये हुआ था कि इस तरह मतलब तरकीब बन गई। और असल में हुआ ये दूसरा ये था कि जब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार थे तो अब सफ़र नहीं कर सकते थे, तो शूरा ने फिर एक समझें कि मुझे आगे क्या था कि एक कायम मकाम निगरान शूरा का एक वो मनसब किया गया था, एक जिम्मेदारी बनाई गई थी, कहा कि ये आएंगे और इस तरह। तो वो मेरे ये मदरी मशवरे और जदवल का सिलसिला जारी रहता था। ठीक, तो शायद इस तरह कोई सूरत हो सकता है कि बन गई हो, इसके अंदर और भी कई असबाब शामिल हों, मगर ये कि ये अमीर सुन्नत ने हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद किसी को निगरान शुरा बनाया नहीं है। अब जो भी निगरान शुरा बनेगा या बनता है उसे सिर्फ और सिर्फ शुरा ही मुंतखब करती है। यही हमारा तरीक़ेकार अब तक चला आ रहा है। मदीना जी कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शान अत्तारी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शुरा की आमद मरहबा। मेरा ये सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कोई इल्म दीन हासिल कर रहा हो तो उसके वालिदैन उसके लिए रुकावट हो, यानी वो मजहबी भी ना हो, और वो ये चाहते हो कि हमारा जो बच्चा है वो इल्म दीन हासिल ना करे बल्कि दुनियावी तालीम हासिल करे, तो उसके लिए कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। मेरे और मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दें, और मुझे आलिम व अमल बनने के लिए दुआ इरशाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन वय्याकुम। अल्लाह ताला हम सबको आलिम व अमल बनाए। आमीन। इसकी चंद सूरतें हैं असल में इस मसले के जवाब में। फ़र्ज़ ऐन जो इल्म होते हैं, फ़र्ज़ उलूम, अगर उसके सीखने का जो कहते हैं कि ज़रिया ही ऐसा है कि आपने कहीं जाना है, तो ये सूरत अलग होगी कि माँ बाप की इताअत की जाए कि नहीं की जाए। क्योंकि माँ बाप बाज़ औक़ात इल्म सीखने से नहीं रोक रहे होते, कहीं सफ़र या कहीं जाने से रोक रहे होते हैं। और अगर वालिदैन की उस कहीं ना जाकर इताअत करते हुए अगर फ़र्ज़ इल्म हासिल करने की सूरत मौजूद है कि वालिदैन के सामने भी रहे और उनकी बात भी माने और अपने फ़र्ज़ उलूम भी हासिल कर ले, तो ऐसी सूरत में वालिदैन की बात माननी चाहिए। और अगर वालिदैन की बात मानकर एक फ़र्ज़ का तर्क होता है तो फिर फ़र्ज़ के तर्क को बचा जाएगा और फ़र्ज़ की तरफ जाया जाएगा। ये फिर होगा ये कि इसको आपको अपने तौर पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक कंडीशन बताकर फिर आपको लेना पड़ेगा जवाब कि मेरी कंडीशन ये है और इस तरह है, तो इंशाअल्लाह वो आपको सूरत बयान कर देंगे। अलबत्ता इल्म दीन हासिल करना भी ज़रूरी है, माँ बाप की इताअत भी ज़रूरी है, मगर माँ बाप की इताअत वही है जहाँ अल्लाह की नाफरमानी ना होती हो। जी, आज जो मौजू है रुकावट है, ये भी मौजू बड़ी वसअत रखता है। रुकावटें नेकियों में भी डाली जाती हैं, खैर ख्वाही के कामों में भी डाली जाती हैं, और बुराई के कामों पे भी रुकावटें डाली जा सकती हैं ताकि बुराई आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही सिलसिला है कि बुराइयों में रुकावटें हटाई जाती हैं और अच्छाइयों के आगे रुकावटें लगाई जाती। तो मदनी फूल चाहूँगा। जी देखिए, नेकी के कामों में जो रुकावट बनते हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वो सख्त तरीन काफिर वलीद बिन मुगीरा
के तरीके पर ना चले जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि और भलाई से रोकने वाला, जो इसका खुलासा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भलाई से रोकने वाला हो और वो इस कुरान करीम के हुक्म में आता हो, तो इससे डरना चाहिए। नेकी की दावत ही देता रहे, बुराई से मना करता रहे। और बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर वो बुराई को रोकने के लिए रुकावट बनेगा तो फितने का भी अंदेशा रहता है। तो नेकी की दावत के कुछ उसूल हैं, कब नेकी की दावत देना वाजिब है, कब नेकी की दावत देना मुस्तहब है, कब नेकी की दावत देना मना है। इन नेकी की दावत के कुछ उसूल हैं जो एक मुबल्लिग को, नेकी की दावत देने वाले को बिल्कुल इसका इल्म होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये सारी चीज़ें सब वाज़ेह होती चली जाएंगी। मदीना जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कादरपुर रामा से। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला लब्बाइक हम देख रहे हैं और मौजू है रुकावट। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं तो किसी ने रुकावट डाल दी है। बल्कि बहुत सारे आमिल तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी फलां जो है ना जी फलां उसने रुकावट डाली हुई है। तो इस तरह खानदानों में लड़ाई झगड़े मामलात हो जाते हैं। तो इस बारे में भी आप कोई रहनुमाई फरमा दें, हमारी तरबियत कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने रिश्ते के मामले में रुकावट डाली है। रिश्ते जैसे सुनते रहते हैं, रिश्ते तो तय हैं और लिखे हुए हैं कि किससे किसका रिश्ता होना है। जब उसने अपने उस मुतालिका रिश्ते तक पहुंचना है उसका रिश्ता हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। इस पर हमें यकीन कामिल होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि हर को रुकावटें नहीं डालता, मतलब बाद औक़ात अपना ही कोई इसमें भी कसूर होता है। यानी अगर हम किताबें पढ़ते तो उसमें ये बात कुछ इस तरह की मिलती है कि अगर लड़की के रिश्ते आ रहे हों और मना किया जाए ना मुसलसल, तो फिर एक वक्त आता है कि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अब वो हमारे गलत डिसीजन है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परेशान आती है। तो इस तरह जब कोई इस तरह की परेशानी और मुसीबत आए तो कुरान की हुक्म की तरफ भी तवज्जो करे कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो ये चीज़ें हैं कि बाद औक़ात हमारे ऊपर आई हुई परेशानी मुसीबत ये हमारे ही गलत फैसलों का नतीजा होती है। कोई रुकावट ही डाले ये ज़रूरी नहीं होता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई है ऐसी चीज़ तो आप इसका रूहानी इलाज कराएं, ना कि किसी मतलब बाबे की बात पर आ गई है कि फ़लाँ ने करा दिया। बाबे को ऐसा पता चला फ़लाँ ने करा दिया, बाबे को ये भी नहीं पता होगा कि इसके 2 दिन के बाद खाना क्या है। बाबे को अपना कुछ हाल अहवाल पता नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई बात अगर अमलिया से कोई जान भी ले तभी ये बात हतमी नहीं होती, फाइनल नहीं होती। और कोई भी दानिशमंद, अक्लमंद, हिकमत अमली समझने वाला एक अच्छा बाबा कभी भी आपको ये बताएगा नहीं कि ये काम किसने किया, क्योंकि उसकी भी इंफॉर्मेशन जन्नी है, कंफर्म तो उसको भी कोई चीज़ नहीं होगी। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात तारिया से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये पूरा शोबा है। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात तारिया फ़ी सबीलिल्लाह इस्तिखारा भी किया जाता है, तावीज़ात भी दिए जाते हैं और औराद व वज़ाइफ का सिलसिला भी होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके बस्ते लगाए जाते हैं, स्टॉल्स भी लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। और इसके अलावा दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आकर भी आप जो है वो जो हमारा रूहानी इलाज का इसमें ऑप्शन है वहाँ से इस्तिखारा भी करवा सकते हैं, कार्ड भी करवा सकते हैं। हुज़ूर मैं कॉल्स भी मज़ीद लूँगा, लेकिन मैं एक अहम मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ और वो मौजू ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात में रुकावट कौन, बीवी के माँ बाप या मियाँ के माँ बाप, या ये दोनों खुद, या उसके बहन भाई या इसके बहन भाई? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, सारे हो सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मत बंदा गौर करेगा तो पता चलेगा। क्या करें ये दोनों, क्या करें? हाँ ये है मसला। ये दोनों एक दूसरे पे एतमाद करें और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें और एक दूसरे का हक अदा करें और एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे से अपना जो भी एक हाल अहवाल है ना वो बयान करके अपने घर बचाएं। कैसे है कि कोई बार बार आकर आपका घर तोड़ कर चला जाएगा। माँ की तरफ से प्रेशर आ रहा हो लड़के पर या लड़की पर, तो उसको किस तरह से सस्टेन करें उसको? कुछ दिली के साथ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये देखिए ये एक आदमी के लिए, मर्द के लिए एक वक्त है, एक आजमाइश का वक्त है कि वो इसको हिकमत अमली के साथ एक तबीब की तरह इस प्रॉब्लम को टैकल करे
دیکھیں ایک شہر کے اندر بعضوں کا جب شہر کا کوئی سٹی ذمہ دار ہوتا ہے نا، بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، درخت بھی گر رہے ہوتے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اموات بھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارے، لیکن وہ ایک آدمی ہر ایک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا، ٹیکل کر رہا ہوتا ہے، کئی دنوں تک ریسکیو کے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو آدمی ایسے موقع پر جہاں 2 4 6 جگہوں سے اس کے لیے پریشانی آ رہی ہیں، بڑا تحمل مزاجی اور بردباری کے ساتھ ہر چیز پر غور کرے، جذباتی نہ ہو، غصے میں نہ آئے، جلد بازی نہ کرے، ٹھہر کر اگر کوئی قابل عالم فاضل اور کوئی معتمد و معتبر کوئی اسلام میں ملتا ہو تو اور ضرورت ہو تو پھر اس سے مشورہ کر کے کام کرے. انشاءاللہ اس کا گھر، اس کی فیملی اور اس کا کنبہ اللہ نے چاہا تو بچ جائے گا. مدینہ جذباتی نہ ہو، میں اتنا عرض کروں گا. بہت زبردست جامع اور معنی. تھوڑا ٹھہرے. میں آپ کو یہ عرض کروں گا ایسے میٹر ہے نا جو یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، اس میں ٹھہراؤ سلمان بھائی بہت ضروری ہے. طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ فوراً ہی آپ جو چاہتے ہیں اس کا مسئلے کا حل نکل آئے گا حل. آپ تھوڑا ٹھہرے رہیں، اسٹے کریں اور بردباری اور حلم سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا. ورد و وظائف پڑھتے رہیں، لا حول شریف پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا زبردست ورد ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی کتنی پریشانیاں دور کرے گا یا اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. آسان ورد میں نے بتایا ہے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ورد آپ بالکل اپنی زبان پر جاری رکھیں، درود پاک کے ساتھ پڑھتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کی مشکل کتنا آسان ہوتی نظر آتی ہے. مدینہ مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. 11 سوال اور 12 پر جواب. مرد ہیں؟ نعم. حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ لا. ٹھیک ہے. انبیاء کرام میں سے ہیں؟ لا. صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. جی حضور. 5 4 3. اگر ابھی سے لیں تو کیا پچھلے 300 صدی ابھی سے، جیسے 1400 1300 1200 یوں 300 صدی کے اندر ہیں؟ نہیں. لا. اچھا پیچھے سے آئیں تو 500 صدی کے اندر ہیں؟ پیچھے سے کیسے آئیں پہلے؟ اوپر سے نا. نام جی جی 500 صدیوں میں ہے. 500 صدیوں میں، سوری 5 صدیوں میں ہے. ہاں شروع کی 500 سال. نعم. سوال ہو گئے 6 ہو گئے. مرد ہیں. نعم. حیات ظاہری سے متصف نہیں. انبیاء 2 صدیوں میں. 2 صدیوں میں. کون سی 2 صدیوں میں؟ پہلی 2 صدیاں، آخری 2 پہلی 2 صدیوں میں. پہلی 2 صدیوں میں ہے. پہلی 2 صدیوں. جی. آپ نے کہا صحابی نہیں ہے. جی. وجہ شہرت فقہ ہے؟ یہ نواں سوال ہو گیا آپ کا. وجہ شہرت فقہ نہیں ہے. لا. وجہ شہرت حدیث ہے؟ حدیث بھی نہیں. لا. 10 سوال ہو گئے. 10 سوال ہو گئے. وجہ شہرت حدیث بھی نہیں ہے، وجہ شہرت فقہ بھی نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. اور ہیں یہ 2 صدیوں کے اندر. ٹھیک ہے. وجہ شہرت حکمرانی ہے، وہ ریاست ہے؟ ریاست ہے. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نیند میں اتنا دماغ کام کر رہا ہے. کیا بات ہے جب تھکے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی خلافت مبارکہ کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک پوری کتاب بھی جو ہے وہ شائع کی ہے.
सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 425 हिकायात। इसको मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, हदीयतन तलब कीजिए। इसके अलावा आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना ऑनलाइन, यहाँ से वेबसाइट के ज़रिए से भी आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। किताब इंशाअल्लाह आप तक घर में पहुँच जाएगी। कुछ मज़ीद गौर की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी हिंद के शहर हैदराबाद दक्कन से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, पिछले दिनों रुकन शुरा आरिफ बापू की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन क़ादरी काबिनात में मज़ीद 3 काबिनों का इजाफा हुआ, जिसमें मुझे भी एक काबिना की खिदमत दी गई है। लेकिन शुरू में तो मैं इनकार ही कर रहा था, लेकिन रुकन शुरा ने मुझे बहुत सारी मदनी फूलों से नवाजा और हौसला अफजाई की। बहुत सारे मदनी फूल अता फरमाए, तो मैं हिम्मत कर कर आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जो अल्फाज मैंने सुने, मदनी फूल, मदीना मदीना की जो मनसब दिया जाता है और जो बंदा ले लेता है और उसकी मदद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए करता है। जज़ाकल्लाह हुजूर, मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इखलास के साथ इन मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा मुझे भी अता हो जाए। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपके कदम जमाए। एक मदनी इल्तिजा करूँगा आप समेत तमाम निगरानों से, मेहरबानी करके 12 मदनी काम अपनी ज़ात पर ज़रूर नाफिज रखिएगा। ज़िम्मेदारी का ये हरगिज़ तकाज़ा नहीं है कि आप दर्स, मदनी दौरा, मदनी काफ़िला, हफ्तावार इज्तिमात में अव्वल ताकि शिरकत, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत, मदनी इनामात, इसी तरह मदनी हल्का, सदाए मदीना, इस तरह के कई मदनी काम हैं जो आपके यहाँ हो सकते हैं, उनमें ज़रूर भी ज़रूर शिरकत कीजिए। एक निगरान काबीना कई मदनी काम अपने तौर पर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान में अपनी हाज़िरी दिलवा सकते हैं। जब आप इन मदनी कामों में रहेंगे, आप फिर देखिए कि आपके यहाँ दावत इस्लामी के मदनी काम कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। महज ये ज़िम्मेदारी मिलना है ना, ये ज़िम्मेदारी मिलना आपसे एक्स्ट्रा वक्त का तकाजा करता है, ना कि दूसरे कामों को तर्क करने का मुतालबा करता है। दीना मदीना जी, 12 मदनी कामों में से 5 मदनी काम रोज़ाना के, 5 मदनी काम हफ्तावार और 2 मदनी काम जो है ये माहाना है। इसके लिए मज़ीद अगर आप जो है वो जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मकतबतुल मदीना की हुआ एक किताब है मदनी कामों के हवाले से, उसका मुताला कीजिए, 12 मदनी काम, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। 12 मदनी काम उसका नाम है, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। और ज़िम्मेदारान से ज़िम्मेदारी लेकर और किस तरीके से ये 12 मदनी काम करने हैं ये सीख कर मदनी काम करने वाले बने, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया और आखिरत का नफ़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है निगरान शुरा, अर्ज ये है कि लब्बैक में हाजिर, उसका मौजू है रुकावट। या अर्ज ये है निगरान शुरा से, क्या ये भी रुकावट हो सकती है कि अगर कोई ये कहे, चाहे वो उसकी बहन कहे या भाई कहे या चाचू कहे या कोई भी कहे कि आपका बेटा स्कूल भी नहीं जा रहा, आपका बेटा जो है ना पार्ट टाइम पे पढ़ता नहीं है बैठ के, आपका बेटा जो है वो नमाज में दिल लगता है उसका, नमाज पढ़ने नहीं आता, मतलब झूठ बोलता रहता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, पढ़ी नहीं होती, मोबाइल में गेम खेलता रहता है, तरह तरह के हिले बहाने करता है, तो क्या अगर उसका बाप उसको मारता है इस बात की वजह से, जिसकी वजह से मारा, क्या उसको इस चीज का गुनाह होगा कि मेरी वजह से उसके बेटे ने अपने बेटे को मारा या कोई ऐसी बात की, तो क्या ये रुकावट है या नहीं, या फिर उसको सुधारने की कोशिश है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए और हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है आपका। अगर कोई शख्स किसी के वालिद को उसके बेटे के ऐसे कमज़ोर पहलू जिसके लिए उसकी इस्लाह मतलूब है, अगर आप उसके वालिद को शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए बताता है, तो बताने वाले पर तो कोई इल्ज़ाम आता नहीं है इन सूरतों में। अब इस्लाह के अंदाज़ जो वालिद साहब ने इख्तियार किए, इसमें अगर वालिद साहब ने इस्लामी हुदूद के जो उसूल हैं अगर वो उसको पामाल किया, शरई हुदूद को तोड़कर अगर वो अपने बच्चे की इस्लाह की तरफ बढ़ें, तो डेफिनेट वहाँ शरीयत इनकी गिरफ्त करेगी। लिहाजा अपने औलाद की इस्लाह करने का जो तरीका है ना, वो भी वही है जिसका
طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے، یعنی کہے یہ سکتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے کو پہلے اصلاح کرنے کے اصول سیکھنے چاہیے، اصلاح کی کیسے جانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ رہی بات بار بار رکاوٹ کی، ایک بہت بڑی شے ہے جو ہمارے کئی کاموں میں رکاوٹ ہے، اسپیشلی نیکی کے کام میں، وہ ہے نفس۔ نفس رکاوٹ ہے، یہ ہے رکاوٹ، میں مانتا ہوں بالکل۔ نفس نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے، شیطان نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ اس کو میں بالکل پراپر رکاوٹ کے موضوع پر لوں گا، مختلف ہیلے بہانے، مختلف سستیاں، عجیب و غریب قسم کے وہ فتنے والے جال ڈال کر یہ چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود کے شر و فتنوں سے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ نفس کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کہتے ہوئے اگر مجھے یقیناً ایک فیلنگ حیا آتی ہے، لیکن میں علم کی بات پہنچانا چاہتا ہوں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ تین وہ اہم ترین ہنر اور گر ہیں، اگر یہ نصیب ہو جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ نفس کی رکاوٹوں کو بندہ اس کا مقابلہ کر کے پار کرے، کیونکہ نفس یہ کنورٹیبل ہے۔ نفس جو ہے نا، یہ اس میں تغیر ہے، یہ امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اس لیے نفس پر اگر ہم بھوک کا اور ریاضت کا اگر بار ڈالیں گے، یہ ایسا گدھا ہے کہ جس کے اوپر جتنا بار ڈالے تو اتنا اس کو مطلب کہ اس پر وزن ڈالا جاتا ہے، یہ سست پڑا رہے۔ یہ ایک عجیب شے ہے نفس۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ امیر سنت کا پورا ایک بیان موجود ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ نفس پر ریاضت کا، بھوک کا یوں سمجھے کہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ امارہ جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے، لوامہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی خطا گناہ ہو جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کے درجے میں آتا ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ وہ پھر ریاضت اور مجاہدے، عبادت اور بھوک کے ذریعے، تقوی کے ذریعے کوششیں کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچتا ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نفس مطمئن عطا فرمائے۔ اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، نہ میں غافل ہوں نہ آپ غافل ہوں، ہم سب کوشش کرتے رہیں۔ آپ نیت ابھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی نیت میں کامیابی نہ ملے، پھر نیت کریں، پھر نیت کریں، پھر نیت کریں، جب تک سانس باقی ہے نیت کرتے رہیں۔ کیا پتا کہ وہ آخری سانس ہماری کامیابی کی بھی آخری سانس ہو اور ہماری ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ سوالات آئے ہوئے ہیں میسیج کے ذریعے سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کسی کے کام میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے اس پہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہی ہو سکتا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ جی، اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ کے کسی درست کام میں، مطلب جائز کام میں، تو اب آپ اپنے رب سے دعا کریں، کسی یہ طے نہ کرے گا فلاں میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پر میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے، وہ مدنی پھول اپنی گرے سے باندھ لیں۔ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے سپرد کر دے۔ یعنی انسان جب کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے نا تو وہ برائی ہی اس سے کافی ہے۔ وہ آپ نے بڑا مشہور ایک محاورہ سنا ہوگا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی برائی کرتا ہے نا کسی کے لیے، اب یقین مانیں یہ خود برائی کرنے والا یہ قابل رحم ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنے برائی ہی کے گڑھے میں گرنے کی وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ دوستوں کی محبت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیسی رکاوٹ بندے دوستوں کو محبت میں؟ پتہ چلے نا،
بعض औक़ात मैं कह रहा कि असल में फ्रेंडशिप, चलो मैं एक अवामी, इसको मैं अवामी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेता हूँ, 4-5 दोस्त होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो इसकी दोस्ती हो गई ना, अगला बोलते हैं ये मेरा दोस्त अच्छा लगता है, पैसा ज़्यादा है इसके पास, या हंसाता ज़्यादा है, या फिर खूबसूरत ज़्यादा है, तो फिर वो दोनों में लड़ाई पैदा कराकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब गलत है। इस तरह की फितने फसाद और इस तरह के लड़ाई झगड़े करने नहीं चाहिए, और इस तरह की दोस्तियों की भी बज़ाहिर कोई पजीरा ही नहीं है और इसके कोई इतने फ़ायदे नहीं है। दोस्ती अल्लाह ही के लिए करनी चाहिए, इतना मैं आपको अर्ज़ करूँ। मदीना जी, मज़ीद कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। एक कॉल जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, निगरान शुरा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने भी अपने बड़ों से यही सुना है कि जब कोई चोट लग जाती या कोई मुसीबत वगैरह आ जाती तो वो यही तरबियत फरमाते थे कि कोई बड़ी मुसीबत टल गई। इससे सब्र व तहम्मुल भी मिल जाता है और फिर ये भी ज़हन बनता है कि वाकई कोई बड़ी मुसीबत टल गई छोटी पर, तो इससे अच्छा ज़हन बनता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हाथों हाथ मतलब आ जाती है सिलसिले में। हमारे अकबर भाई आज एक बड़ा खुसूसी सेगमेंट लेकर आए हैं, और जी अकबर भाई, आज अकबर भाई आपके हवाले जी दिखाएं कौन सा सेगमेंट है। घोड़ा, बकरी और ऊंट भी है। वाह जी वाह, क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये खुद आप देखकर आप खुद ही शायद सारे काम मैंने करने समझ में आ जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक जो 20 किलो है ना, उसमें ऊंट भी है और बकरी भी है, ऊंट भी हो और बकरी भी हो और वजन 20 किलो हो, ये भी एक बात ना ये फर्जी वजन है। ठीक है, और ये 3 है तो इसका वजन क्या होगा? असल सवाल तो ये है ना जी। आखिरी का जो वो है ना, वो आपने फिल करना है। घोड़ा और बकरी इन दोनों का वजन है। अच्छा, जो वजन आप पहले वाले के अंदर दोनों का मुतय्यन करेंगे वो फिर आपको आगे वालों में उनका वही रखना है, वही रखेंगे तभी जाकर आखिरी वाले पे फैसला कर सकेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भाई इतनी छोटी सी जगह पे ना घोड़ा बकरी ऊंट इकट्ठे नहीं हो सकते। वहाँ तो हुए ना, हो तस्वीर में तो हो गए, वेट स्केल पर खड़े हैं, ये इतना तो तय है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महरोज भाई आप क्या कहते हैं? जवाब तो है मेरे। क्या हो रहा है? दे जवाब। नहीं आप देना जी जवाब, उनसे तो बाद में ले लेंगे जवाब। महरोज भाई तो बाद में टीम का हिस्सा है। देखिए जी, वेट निकालना है आपको किसका, इन तीनों का, कि तीनों मिला के कितने हो। ये पहली होती है, सीधा सीधा तो है ही नहीं। ये तो सीधा जी ये सीधा ये तो सीधा सीधा है पहली, लेकिन बात सीधी सीधी ऐसा नहीं है कि तुक्का लगेगा। बात आएगा जवाब एक ही, 2 जवाब नहीं आ सकते। अच्छा, यानी ये वो नहीं है कि आप बोलेंगे यहाँ से देखो तो ये और यहाँ से देखो तो ये, यानी आप चीज नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन उसकी पहले वाले की करनी है। वो कैलकुलेशन आपकी सही बैठ गई तो आप अच्छा, अब घोड़े को कितना वजन देंगे, बकरी को कितना वजन देंगे, फिर अगले वाले ऊंट में 20 किलो है तो उस बकरी का वो वजन अलग से वेट नहीं बताया गया किसी भी, ना बकरी का, ना घोड़े का, ना ऊंट का। ये आपने दो साथ रख के बताए गए और फिर आखिर में 3 का पूछ रहे हैं। तो एग्जैक्टली पूछा ये जा रहा है कि बकरी कितने किलो की है, घोड़ा कितने किलो का फर्ज किया गया है, एज्यूम किया गया है यहाँ पे, और ऊंट कितने किलो का एज्यूम। वैसे बनता तो 29 किलो है, 29। थोड़ा सोच लें, कैसे जो है वो अपना, मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मेरा अपना हिसाब बता देता हूँ जी। ठीक है, कि जब घोड़ा और बकरी खड़े हैं जी, तो 10 किलो का वजन बना, तो ये 10 किलो का होता तो दोनों का 5-5 किलो होगा या कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा ना, ये कम ज्यादा हो सकता है, आपके अपने ऊपर है ना। आप यहीं पर तकसीम आपकी सही होगी तो वो कोई हिंट दे दो। चले मुझे जवाब तो पता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल आता है ना। ना जी, अगर मुझे शामिल कर दें आज आप, मतलब ये 10 किलो को तकसीम कर। बात बताएं। हाँ जी, आपने पहली दफा देखा था, आपने पहली दफा बता दिया, ये मैंने बता दिया। अकबर भाई मुझे इसका जवाब नहीं पता ना, आज निगरानी शुरा के साथ शामिल। चलो आप साथ हो जाओ। चलो क्या है ये? बकरी 3 किलो की है जी, घोड़ा 7 किलो का है, इसमें जो फर्ज किया गया, और ऊंट जो है ये 17 किलो का है, और यूं मिला के आखिर में जो वेट बनेगा आपका वो 37 किलो बनेगा। सही है भैया? गलत। क्यों? 37 किलो हम दिखाएं कितना। अब आप गिने। ये आप मेरा जवाब मान रहे हैं? ये निगरानी शुरा तो तस्लीम करें पहले। मुझे क्या तस्लीम करवाना भैया, जैसे है बात टेक्निकल है भाई। मुझे जो मैसेज आया ना, डॉक्टर जीरक का है और भी इस्लामी भाई का है और फैयाज भाई मकतबतुल-मदीना है, सब ने जो है वो अपना सही जवाब 27 37 नहीं 27 कह रहे हैं। सही है?
हिसाब बताओ 27 का। 3 किलो की बकरी, 7 किलो का घोड़ा और 17 किलो का ऊँट। पहले में 10 केजी है, 3 किलो की बकरी है, 7 किलो का घोड़ा है। दूसरे में ऊँट जो है 17 किलो का है, 3 किलो की बकरी है, 20 हो गया। तीसरे में 7 किलो का घोड़ा है और 17 किलो का ऊँट है, तो 24 किलो हो गया ये एक सेगमेंट है। और इस पे तो जो है इसमें सबक क्या, इस पे वही होना सबक चाहिए। इस पर ये है कि एक चीज जो आपको मुश्किल नजर आ रही है उसको हल करने की कोशिश करें, उस पर सोचें। मेरी तरह ना बने कि जो उसने बोला है भाई 3 इकट्ठे क्यों है, वैसे जी ना बोले, बल्कि गौर करें क्यों है। जैसे मेरोज भाई ने काम किया इस पे तो वो सुई में से जो गुजारा था ना, इस पे तो वही बनता है कि जवाब। एक जो है वो अपना वाकई यानी दिमाग को तेज करने वाली एक चीज है। बंदा देखे कैलकुलेशन जो है दिमाग भी तेज होता है, और दूसरा बंदा ये जहन बनाए कि मैंने इसका जवाब चीज का देना है। मुश्किल है तो मुश्किल को अबूर करना जी। पहली में बंदा जो है वो आमतौर पर हो जाता है। कौन सा वाला जी? वही डॉक्टर वाला। डॉक्टर वाला जी, स्क्रीन पर एक वो दिखाएं। A boy is walking down the road with a doctor. While the boy is the doctor's son, the doctor isn't the boy's father. Then who is doctor? You have to answer. कह रहे हैं कि एक लड़का जो है एक रोड पर जो है डॉक्टर के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लड़का है ये डॉक्टर का बेटा तो है, लेकिन डॉक्टर जो है ये उस लड़के का बाप नहीं है। तो आप बताएं कि डॉक्टर कौन है? इसका जो मदार है ना जी, वो एक जगह के ऊपर। सलमान भाई से जब हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर की याददाश्त चली गई है, इस वजह से। नहीं मतलब कि ये लड़का डॉक्टर का बेटा है जी। हाँ जी, पहले जुमले में हाँ, ये उसी डॉक्टर का बेटा कहा जा रहा है जो ऊपर है। जी 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 जी, उसी दोनों। द डॉक्टर इज नॉट द बॉयज फादर। हाँ जी। देन हु इज द डॉक्टर? हु इज द डॉक्टर? फैयाज भाई ने जवाब दे दिया। फैयाज भाई को यार फौरन जवाब दे देते। या तो फैयाज भाई ने लगता है पहले से इनको व्हाट्सएप आए हुए होते होंगे, आगे पीछे तो आते होंगे। तो फैयाज मेरे को क्यों जवाब नहीं देता? फैयाज मेरे पास भी तो नवाया दिया है, इसमें देना है जी। सही है, इसमें इस पर फैयाज ने जवाब सही दिया, मैंने पढ़ लिया। क्या जी? ये माँ इसकी मदीना मदीना जी। सगाअत तार इसरार अली अत्तारी, अरब शरीफ सर्च कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, लब्बाई के मैं हाजिर हूँ। सिलसिला देखने की सआदत नसीब हो रही है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे निगरान शुरा और दीगर इस्लामी भाइयों की भी ज़ियारत नसीब हो रही है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि जो मौजू है रुकावट, बड़ा ही प्यारा मौजू है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ थी कि बाज़ औक़ात मदनी काफ़िलों में सफ़र करने के हवाले से भी कई तरह की रुकावटें पैदा होती है। जैसे अगर बंदा जॉब करता हो तो जॉब के मसाइल, तो इस सूरत में क्या मदनी काफ़िले में सफ़र किया जाए? बराए मदीना इस पे थोड़ा मदनी फुलाता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो रुकावट तो एक सुस्ती नफ्स और शैतान की तरफ से जो होती है, बाकी जॉब ये एक काम का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और अगर जॉब में छुट्टी सेट नहीं दे रहा तो आप कोशिशें जारी रखें, इनफरादी कोशिश करें, उसे मदनी माहौल के करीब लाएं और अच्छा काम करके दें, एक अच्छी परफॉर्मेंस ला कर दें। हो सकता है कोई अच्छी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर वो आपके लिए मदनी काफ़िले में रियायत कर दे। मैंने शुरू में कह दिया कि हर काम को, हर चीज़ को ना, कोई काम ना होने का रीज़न, कोई रुकावट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको मैं चले कंक्लूजन यूँ दे देता हूँ कि कोई काम नहीं हो रहा, ये ना होने का रीज़न रुकावट ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। मतलब कि वो हिस्सा होता है और वो हिस्से को भले रुकावट का नाम दे, तब आपकी मर्जी है, इसको कोई भी नाम देते। लेकिन जो रुकावट यहाँ पर एक मायना में ली जाती है कि यार कोई रखना अंदाजी कर रहा है, कोई बैरियर आ रहा है, तो ये गालिबन हर जगह पर ये लफ्ज़ नहीं फिट हो रहा होता। ठीक है जी, एक और सेगमेंट है हमारा, इसको भी शामिल कर लेते हैं जी। दिखाइए लफ्ज़ वाला सेगमेंट जो है, मदीना मदीना। 3 हर्फ बताने हैं, 4 गलतियों की गुंजाइश है। मदीना मदीना। मरहबा जी। अलिफ है, अलिफ अलिफ तो है। 2 हर्फ 4 गलतियां। क्या सखावत है बनाने वाले की ना, जिसने सेगमेंट बनाया। मदीना मदीना जी। वाओ या भी बात, अलिफ से शुरू करिए। मीम है? मीम नहीं, मीम तो नहीं है। नहीं जी, नहीं मीम नहीं है जी, मीम नहीं है। ऐसा क्या पड़ा बना?
میم نہیں ہے. 7 6 میم بھی نہیں ہے. 3 2 1 0. یا ہے؟ نہیں جی نہیں, یا بھی نہیں ہے, یا تو نہیں. اب وہی رہ گئے پیچھے اپنی ثواب دید پر, اگر آپ لگانا چاہیں تو. یا بھی نہیں ہے جی. 2 حرف ہیں اور 2 ہی غلطیوں کی گنجائش ہے. اللہ اللہ اللہ. 2 1 0. جی حضور. عرض کرتا ہوں, میم بھی نہیں ہے. سین. سین کیوں بولا آپ نے؟ سین کہاں لگانا ہے؟ با. اللہ 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 اکبر. صحاب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامہ مبارکہ کا نام, اور شیخ طریقت امیر سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں جو امیر سنت نے امامہ باندھا اس کا نام بھی صحاب رکھا. اور عبدالحبیب بھائی نے ایک مسجد بنانے کی, خود مسجد بنانے کی نیت, 2 مسجدیں بنانے کی آفر آ گئی ہے کہیں اور. اللہ 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 اللہ. یہ مجھے دیتے, میں 2 مسجدیں بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مدد آئی ہے؟ نہیں, یہ میرے ذہن میں کیا بات. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. جی اگلی ابھی آ گیا صاحب نام, یہ منصور بھائی ہمارے ابو دھابی میں, انہوں نے صحاب بھیجا. نگرانی شورا کی آمد مرحبا. میں بھیونڈی سے ریاض اختاری عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع بڑا پیارا ہے, رکاوٹ. حضور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے کھڑکیوں میں ہوا نہیں آتی ہے, جس کی وجہ سے سامنے بلڈنگ بن رہی ہو تو بلڈنگ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں اور اسٹے وغیرہ لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول. جی اس کے بائلوز ہیں, قانون ہے کہ جب ایک عمارت بن رہی ہے تو 2 عمارتوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, 2 گھروں کے وہ بلڈنگوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی رکاوٹ, یہ الگ معنی میں رکاوٹ. دیکھیں ہر ایک لفظ الگ الگ جگہ پر الگ الگ کہلائے گا نا. وہ مطلب کہ ایک ہوتا ہے میرے کام میں رکاوٹ, ابھی ہوا میں, تو یہ چیز یہ الگ رکاوٹ کے معنی میں آئے گی. جیسے مثال ایک لفظ کے ایک لفظ کئی جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. واہ واہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لفظ واہ واہ کو کئی معنی میں استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن ایسی یہ کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کبھی کوئی چیز بنائیں تو کسی کے مطلب کہ اس کو اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو فائدے میں وہ چیز رکاوٹ نہ بنے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.